मान्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लिट्स विजन यूएसए में। बताइए, हाउ इज लाइफ? माय फर्स्ट क्वेश्चन कैन इट बी, हाउ हैज बीन लाइफ आफ्टर बिग बॉस 16? Life has been always very normal, yeah. I don't think so. Nothing can change your struggle and hard work which you have to do in the future. But I was well prepared and I came out really early. So I'm not saying that life has changed, but yeah, people know me really well now. People know me as Manya Singh rather than Miss India. So I wanted to go beyond Miss India. Like मेरा ऐसा था कि लोग मुझे मानिया सिंह के नाम से जाने, not just that there was one girl who got crowned as Miss India runner-up. So that thing has completed. Like even today, when I travel by bus or train, people literally recognize me. तो जहाँ पे मुझे अपना mask मुंह cover करके जाना पड़ता है. So that is the one thing which I always say. And secondly, I've always been very ready that in future अगर मुझे entertainment industry में काम करना है, so I need to work really hard. आई नीड टू डू मेरे सेट ऑफ वर्किंग जो होता है जब आप मेहनत करते हो. सो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी प्रिपेयर्ड दैट ठीक है. बट आई हैव ऑलवेज बीन ग्रेटफुल कि बिग बॉस ये अपॉर्चुनिटी आई थी जो विच आई हैव एक्सेप्टेड एंड आई एम हैप्पी. आई नेवर रिग्रेट फॉर एनी डिसीजंस विच आई टेक. राइट, राइट। माने जब भी कोई इंसान बिग बॉस के घर में जाता है, वो कुछ ना कुछ थॉट लेके जाता है। वो चाहता है कि जब मैं घर के बाहर निकलूं तो मेरे लिए कुछ ये चेंजेस है, सम थॉट डू गो विद इन दैट हाउस। तो आप क्या थॉट लेके गई थी, एंड हाउ मच आर यू सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड विद योर जर्नी? I'm not satisfied with my journey because the moment I started coming out as Manya Singh in third week, like taking stand, being very strong women. That week only I got evicted, which is like okay. I always accept whatever happened for a good reason. But when I went inside, there was no thought behind that. Okay, मैं ऐसे गेम खेलूंगी. ना ही मैंने किसी कंटेस्टेंट के बारे में रिसर्च किया था बिकॉज मैं अंदर गई और मुझे लगा कि ठीक है, पीपल विल बी रियली नाइस. They will try to adjust, they will try to not to go any personal, but then when I went inside it was completely different picture. But I didn't go inside the house with any strategy क्योंकि मेरा main motto था that I'll be myself. Where some point of time मैंने अपना time लिया, but then when it came on third week, things were different. Right, right. Manya, like every other Big Boss contestant, you also faced your share of criticism, be it trolling. My question to you is that how are you dealing with it right now? And initially, when you came to know about all this trolling and criticism, how much did it affected you mentally? Basically, I am that strong that nothing can break me. It's very straight. So I never celebrate my success and I never cry over my failure. So that's like two one liner which I always follow. And it will never affect me. Even in future, even जब मैं बाहर आई तो जो trollings हुए, I was quite okay कि ठीक है. At least the moment I came, it was very normal. Like हम मैं आई, कपड़े चेंज किए, हमने नॉर्मल नीचे बैठ के खाना खाया, फिर हम सो गए. दैट वाज लाइक मेरी और मेरी फैमिली का रिएक्शन यही था कि दिवाली के दिन आई, दिवाली खत्म हो चुकी थी, मैं हम सब ने मैंने कपड़े चेंज किए, मेकअप निकाला, खाना खाया और आके मम्मी और मैं साथ में सो गए. दैट वाज द प्रोसेस. व्हेन आई सॉ द ट्रोलिंग एंड ऑल, इट डिडंट अफेक्ट मी बिकॉज आई न्यू कि दिस विल नॉट डिसाइड माय फ्यूचर. Because I know that faceless people do senseless comment. They were not inside. I was inside. I knew what I was going through. I knew that I am 21. I have done mistakes. I'm not saying that I haven't done any mistakes, and I have accepted it and I moved it. Like मैं move on कर गई because I can't be like बाजिंग कि लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मेरी लाइफ खत्म हो गई. ऐसा नहीं है. मुझे पता है कि if I want to reach somewhere, I have to keep on moving. I can't be like crying, sitting at one place और रोना धोना चालू कि नहीं अच्छा हुआ, नहीं अच्छा हुआ, नहीं. जो हुआ हुआ. Now Manya, move on. What is next? That was my situation. And then the moment I came out, I saw the trolling. I just moved out to my studies. Like earlier I was preparing. मैं UPSC के लिए prepare कर रही थी. And then उसके बाद then things Miss India happened. Then उसके बाद Big Boss happened.
देन आई डिड सम कैंपेन, तो उसके टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिला कंटिन्यू करने के लिए. देन माय पेरेंट्स वर लाइक कि एटलीस्ट पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करो. सो उसके दिवाली के 2 दिन बाद से मैंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई शुरू कर दी. लाइक आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय मास्टर्स, आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस, आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर माय पैशन. सो आई थिंक ट्रोलिंग एंड ऑल विल नेवर इफेक्ट मी, बिकॉज इससे बहुत वर्स्ट वर्स्ट चीजें मैंने अपनी लाइफ में देखी है. So this is very basic 1% of those things which I have seen in my life. So that was like okay, जिसका अपना ओपिनियन है, it's a freedom of speech. लोगों को लगा मैं गलत थी, वो लोगों को लगा. मुझे लगता है कि मैं मान्या कैसी हूँ. मुझे शायद वो टाइम नहीं मिला कि मैं लोगों को दिखा पाई कि मान्या एक्चुअली कैसी है. तो कोई बात नहीं यार, देर विल बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड पीपल्स परसेप्शन कीप्स ऑन चेंजिंग. सो यू कांट बी, आप कभी भी लोगों को खुश नहीं कर पाओगे. So that was my thinking. Okay, it doesn't affect me. I have been through a lot. This is just a 0.1%. ओके. अब मानिए, ऑफ कोर्स जो भी बिग बॉस में जाता है, ये आपने भी अपनी कुछ इंटरव्यूज में कहा कि अब गलत परसेप्शन बन जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स मेकर्स आपको पूरा फुटेज नहीं बताते हैं, उनकी एक टाइम लिमिट होती है और वो उस तरह से चीजों को प्रेजेंट करते हैं. आपने जब आके अगर बाहर देखे एपिसोड्स, क्या लगता है कौन सा इंसिडेंट था जो घर में हुआ, वेदर इट वाज द प्रियंका वाला इंसिडेंट, वेदर इट वाज सृजिता का इंसिडेंट, आपके हिसाब से वो कौन सा इंसिडेंट था जिसकी वजह से शायद लोगों ने आपको एक नेगेटिव लाइट में लिया, इफ एज अ व्यूअर और एज मान्या यू वांट टू से? लुक, आई थिंक मेरा झगड़ा जब भी हुआ है तो मेरे मुंह से कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आया जहां किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट रहा है. लाइक स्पेसिफिक स्टेटमेंट जब श्रीजिता के साथ झगड़ा हुआ था. एंड आई ऑलवेज से पीपल्स आर नॉट बैड, लोग बुरे नहीं होते, सिचुएशन गलत हो जाती है. आई थिंक उस हिसाब से अगर हम चीजें देखेंगे ना तो चीज लाइफ बड़ी शॉर्ट रहती. तो अगर मैंने कुछ स्टेटमेंट गलत दिया था तो आई वाज द ओनली पर्सन हु वेंट टुवर्ड्स द नेक्स्ट पर्सन एंड से कि भाई जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, इट वाज जस्ट अ हीट इन द मोमेंट. मैं कभी दिल से कुछ नहीं बोलती. मैं ट्रेन्ड एक्टर, मतलब मेरी एक्टिंग का जरिया अलग है. लाइक इवन इन एक्टिंग और कैरेक्टर आई बी माई सेल्फ. बट when it comes to on the show, I didn't go with any planning. I didn't go with any expert advice. मैं जनरली मान्या को आया ये ऑफर, मान्या ने एक्सेप्ट किया. मान्या बहुत जेन्युइन थी अपनी चीजों को लेके, बट मुझे वो गाइडेंस नहीं मिली थी कि अंदर जाके मुझे कैसे रहना है. मुझे ये था कि मान्या बी योर सेल्फ, ओन योर आइडेंटिटी. सो व्हेन पीपल कीप ऑन बार्जिनिंग ऑन माई मिस इंडिया, मिस इंडिया, मिस इंडिया, बार बार, उनको पता था कि मान्या इसी में प्रवोक होगी. जबकि मैंने लोगों से ओपनली बोला था दैट यू वांट गो ऑन मी, माय लुक्स, ओके फाइन, आई विल एक्सेप्ट इट. जस्ट डोंट गो ऑन माय पेरेंट्स एंड डोंट गो ऑन मिस इंडिया. आई एम वेरी इनसिक्योर टुवर्ड्स दिस टू थिंग्स. ये चीजें मेरी इनसिक्योरिटी है, प्लीज डोंट गो. एंड मैंने जो जिन लोगों से मेरे झगड़ा हुआ था उन लोगों से मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि जो झगड़ा करना है मुझसे करो, ये चीजों पे मत कर. बट देन उन्होंने बार बार वही चीजें लानी शुरू कर दी. तो यार गुस्से गुस्से में यार लोग कुछ भी बोल देते हैं. एंड दैट केम आउट एंड इट डजंट मीन दैट जो मैंने गुस्से में बोला मैं वैसी ही हूँ. नहीं, आई वाज ओनिंग माई आइडेंटिटी. आई वाज जस्ट प्रोटेक्टिंग. जैसे अपनी माँ एक अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही मैं अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रही थी. अब उस प्रोसेस में रूड और एरोगेंस बाहर आई तो लुक, आई कांट चेंज पीपल्स परसेप्शन व्हाट दे आर थिंकिंग ऑफ मी. बट व्हाट आई कैन चेंज दैट आई शुड नॉट गेट बॉदर्ड कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ वो मुझे फर्क पड़ता है. और मुझे आज भी लगता है कि आई एम द मोस्ट काइंड हार्टेड पर्सन, बिकॉज मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है. और अगर मैं मुंह में या मिट्टू बन रही हूँ तो यस, आई हैव सीन माई सेल्फ. आई नो कि मान्या कैसी है, उसकी लाइफ कैसी है. वो एक स्ट्रांग लड़की है. तो ये चीजें मैं मुझे ज्यादा, मतलब मैं बोलती हूँ कि आई हैव थोड़ा बहुत रिग्रेट जो स्टेटमेंट मेरे मुंह से निकला है. बट देन मुझे वैसा प्रोवोक भी किया गया था, दैट्स व्हाई गुस्से में मेरे से निकला. एंड आई डिड अपोलोजाइज कि भाई आई एम अपोलोजाइजिंग जो भी मेरे. अंडरस्टैंड सिचुएशन है, बट व्हाट इज द स्टेटमेंट यू रिग्रेट द मोस्ट, इफ यू कैन जस्ट टेल अस? आई थिंक टीवी एक्टर वाला, दैट आई डिडंट मीन इन दैट वे कि टीवी एक्टर कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है. आई ऑल्सो वांट टू गो इन द सेम वे. आई ऑल्सो वांट टू गेट इनटू दैट टीवी जोन.
बट आई मेंट दैट आपने क्या किया है टीवी एक्टर बन के, बट वो स्टेटमेंट ना निकल के कुछ और निकल के आया मेरे मुंह से, और वो भी गुस्से में. हम्म। देन लेटर आई रियलाइज कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए. देन आई वेंट, लाइक आई लिटरली मैं उनकी तरफ गई और मैंने उन्हें बोला भी कि लिसन आई एम सॉरी, आई थिंक हम दोनों को ये दूसरे पे नहीं, ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए. देन आई थिंक शी डिडंट अग्री एंड शी स्टार्टेड अब्यूजिंग मी. So I left it from there. So that was my dignity, कि मैंने खुद की पर्सनालिटी, वो मुझे लोग गाली भी दे रहे थे तब भी मुझे ज्यादा वो नहीं पड़ रहा था, मैं अपने अपने से मतलब रखी. ओके। तो माना ये बताइए कि अब तो आप घर के बाहर हैं, आप जब आप घर में थी, ऑफ कोर्स आपका परसेप्शन होगा सारे कंटेस्टेंट्स को लेके, पर जब आप घर से बाहर आई एंड जब आपने मे बी देखा एपिसोड्स या जो बाहर की दुनिया जब देखी, तो वो कौन से कंटेस्टेंट है जिनको लेके आपका परसेप्शन चेंज हुआ, अगर कुछ ऐसा हुआ रहेगा तो? आई थिंक अंदर मेरे लिए सब ये थे कि कोई बात नहीं यार, लोग झगड़ा करते हैं, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिलजुल के रहेंगे, बिकॉज एक ही घर है. सबको साथ में रहना 24/7. बट जब मैं बाहर आई तब मुझे पता चला कि जैसी दुनिया दिखती है वैसी है नहीं. क्योंकि मेरे लिए मेरा नजरिया एक होता है कि मैं बढ़िया तो दुनिया बढ़िया, ऐसा वाला. देन आई रियलाइज कि जो लोग मेरे से बहुत प्यार से बात कर रहे थे, मेरे लिए कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव थे, वो कहीं ना कहीं मेरे पीछे ही मेरी बैंड बजा रहे थे, जस्ट बिकॉज आई वाज टू नाइस टू देम. एंड जब रिग्रेट की बात आती है तो एक चीज होता है कि आई विश मैंने अपने लिए स्ट्रांगली ओपिनियन और स्टैंड लिया होता, रादर देन मैंने बहुत सिलेक्टिव जगहों पे अपना ओपिनियन दिया है जो कि बहुत स्ट्रांग बन के बाहर आया है. सो आई न्यू कि मेरा ओपिनियन बहुत स्ट्रांग रहता है, इसलिए मैंने थोड़ा सिलेक्टिव हो गई. लेकिन आई विश अगर वो थोड़ा और खुल के मैंने अपना ओपिनियन और अपना स्टैंड लिया होता तो आज मैं वहां होती. बट नेवर नो, you never know, like I'm just working hard. I think something big will come up on the way. That is always good thing. हु आर दिस पीपल यू थिंक जिन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, कंसिडर्ड कि वो आपके फ्रेंड थे बट बाहर आपके कुछ और ही पता चला? आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट मुझे नहीं होती. आई एम वेरी डिफरेंट पर्सन यार. आई एम लाइक स्पिरिचुअली कनेक्टेड. मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि मैं खुद से डिसअपॉइंट नहीं होनी चाहिए. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं. आई एम नॉट इवन श्योर कि मैं उन लोग से बाहर मिलूंगी भी या नहीं, बिकॉज मेरी दुनिया बहुत अलग है. इमेजिन मैं अपनी लाइफ को 8-8 के घंटे में डिवाइड करके रखती हूँ. तो 8 घंटा मैं सोती हूँ, 8 घंटे मैं अपने पैशन के लिए काम करती हूँ, 8 घंटे में 4 घंटे मैं पढ़ाई करती हूँ, 4 घंटे मैं अपनी फैमिली को देती हूँ. तो दैट्स हाउ आई फंक्शन. तो मुझे नहीं लगता कि मैं मेरी एक ही फ्रेंड है 8 साल से, वो एक ही बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसी के साथ ज्यादा रहती हूँ. अगर मुश्किल से भी हम मिले तो मैं बहुत ज्यादा अलग लड़की हूँ. मुझे नहीं पता, मैं किसी से डिसअपॉइंट नहीं होती. मैं सीधा अपना कनेक्शन उन लोग से तोड़ देती हूँ. तो मुझे नहीं लगता कि घर से बाहर आने के बाद मैं किसी से कनेक्ट रह पाऊंगी, बिकॉज आई एम वेरी वियर्ड. एंड वियर्ड नहीं कह सकते, आई एम वेरी, मेरी लाइफ बड़ी अलग है. आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन. आई एम नॉट समवन की अरे चल को आज हैंग आउट करते हैं, चल आज मूवी जाते हैं, चल आज कॉफी पे जाते हैं. वैसी बंदी मैं नहीं हूँ. मुझे नहीं पसंद मैं अपना टाइम कहीं वेस्ट करूँ, मुझे नहीं पसंद कि मैं अपने पैसे कहीं वेस्ट करूँ. तो मेरा एक ही रहता है कि यार अगर आप मुझे कभी रास्ते में वो मिलेंगे, जैसे अर्लियर आई जस्ट मेट सृजिता, वी हैड अ बेस्ट टाइम टुगेदर. अभी अभी मैं एक फैशन शो में, हम हाथ में बैठ के 2-3 घंटे बात कर रहे थे. बट द मोमेंट आई केम आउट, it was completely not connected with her, not getting engaged with her. It was like नहीं जानती मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ. So that's how I am, because सबकी जर्नी अलग अलग होती है. मेरी मेहनत की जर्नी अलग है. कल को मैं 10 लोगों को अपने साथ नहीं लेके जा पाऊंगी, मैं अपने आप को ही लेके जाऊंगी. तो आई विल नॉट, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद एनीबॉडी. वो उनका गेम था, उन्होंने अपने तरीके से खेला. बट इन नॉर्मल लाइफ आई एम वेरी फ्रैंक. जो मुझसे बात करेंगे मैं उनसे बात करूंगी, जिनको नहीं पसंद कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते. राइट, राइट। मानिए एज अ व्यूअर, अब अब जब आपने बिग बॉस शायद अगर आप देख रही होंगी या आपने अगर कुछ ग्लिम्सेस देखे हैं, तो 3 लव स्टोरीज इस वक्त घर में चल रही है, शायद तभी भी चल रही थी जब आप थे। तो आप एज अ व्यूअर जब देखती हैं, ठीक है, और जब आप कंटेस्टेंट थी, तो आपको किसकी लव स्टोरी जेन्युइन लगती है आज भी? व्यूअर भी आपको किसकी लव स्टोरी अच्छी लगती है देखने में या साथ में? Look, I am not in right place to comment on someone's relationship. जब मैं अंदर रह के आप आते हो और जब आप बाहर से देखते हो, तो आपको दोनों दो लाइक सिक्के के दोनों पहलू पता होते हैं.
तो आप एज अ व्यूअर कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज आप जानते हो कि अंदर क्या चल रहा था. हम्म. तो इट्स ऑलवेज लाइक आई ऑलवेज से कि जब प्यार है तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. हम्म. दैट इज द वन स्टेटमेंट आई वुड लाइक टू गिव. एंड सेकेंडरी, टाइम खुद ही बता देगा कि किसका प्यार गेम के लिए है और किसका प्यार इंडिविजुअली है. और आई थिंक लोगों से वो कनेक्ट हो जाता है. लाइक शहनाज और सिद्धार्थ, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी. इट वॉज वेरी जेन्युइन. दे बोथ हैड देयर ओन गेम. वो अपना अपना गेम खेल रहे थे बट वो दोनों कनेक्टेड थे. राइट. So that was the, I think I would like to say I'm no one to say कि किसका रिलेशन फेक है या रियल है. वो टाइम आने पे अपने आप पता चल जाएगा कि कौन रियल है कौन फेक. राइट. बट ओके, आई अंडरस्टैंड यू, यू नो यू कैन कमेंट ऑन दैट, बट कोई कैसे दो लोग हैं जब आप स्क्रीन पे देखते हो तो दे लुक गुड, देयर कनेक्शन लुक गुड एज अ व्यूअर, आई एम आस्किंग. आई थिंक प्रियंका एंड अंकित देयर रिलेशनशिप इज लाइक पहले से ही वो काफी अच्छे दिखता है. मैं तो बोलती भी थी कि भाई आप अपनी शादी का कार्ड मेरे घर पे भेज देना, मैं आऊंगी. सो दे लुक गुड टुगेदर. दे हैव वेरी जेन्युइन बॉन्ड. सो आई होप अच्छा ही हो. राइट, राइट. ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस. मैंने इंटरव्यू आपका सुना था जहां पे यू सेड दैट कि शालीन एंड गौतम, शालीन कहीं ना कहीं वो आपको अप्रोच करना चाहते थे ताकि ऑन स्क्रीन कुछ तो एंगल बन सके एंड साथ में गेम आगे बढ़ सके. तो एंड आज वो दोनों ऑफ कोर्स अलग अलग लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हैं उस गेम में. तो जब आज आप उनका गेम देखती है, बिकॉज ऑफ कोर्स शालीन आधा टाइम हैरान परेशान रहते हैं, वो खुद ही कहते हैं मैं कहाँ फंस गया. गौतम को बहुत कुछ नेगेटिव लाइट में आ गए हैं बिकॉज ऑफ सौंदर्या. तो आज यू फील ग्रेट दैट आपने एसोसिएट नहीं किया, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम ऑफ स्पेशली ऑफ दिस टू बॉयज? I I always say कि गौतम has been really good friend starting में. Good friend. तो स्टार्टिंग ही वाज प्रोटेक्टेड ऑफ मी, आई वाज प्रोटेक्टिव ऑफ हिम. तो ये गिव एंड टेक वाला रिलेशन था जो हम एज अ अच्छे दोस्त बन के कर रहे थे. बट कभी मुझे मौका मिला तो आई ऑलवेज हाईलाइट देम कि ये शो इज ऑल अबाउट इंडिविजुअलिटी, ऑल अबाउट पर्सनालिटी. अगर मुझे लोग ट्रोल भी कर रहे थे तो देर वर 60% लोग जो मुझे गलत बोल रहे थे, 40% ये भी बोल रहे थे कि मान्या आपने अपने टाइटल के लिए झगड़ा किया, अपनी डिग्निटी के लिए झगड़ा किया, आपने अपनी आइडेंटिटी ओन की. बी इट इन अदर वे और एनी अदर वे, मैं मेरी पर्सनालिटी कैसे भी निकल के आई होगी उसके लिए आई हैव नो आइडिया. बट फाइटिंग फॉर योर ओन स्ट्रेंथ इज ऑलवेज गुड रादर देन झुंड में जाना. जबकि मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था कि पीपल आर फाइटिंग झुंड में. अगर शालीन, टीना, सौंदर्या और गौतम को अलग अलग कर दिया जाए तो उसमें से सिर्फ दो ही बचेंगे और बाकी लोग अलग हो जाएंगे. सो दे आर, द गाइज आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उस गेम में रिलेशनशिप अब वर्क नहीं करेगा क्योंकि लोग अभी बहुत क्लियर और बहुत स्मार्ट है. उनको दिखता है कि प्यार क्या होता है, बनावटी प्यार क्या होता है. तो इफ यू सी, दे आर ओनली कॉन्ट्रडिक्टिंग देयर ओन स्टेटमेंट. गौतम के लिए मेरा हमेशा यही रहेगा कि आई आई ऑलवेज से कि भाई यू हैव कम हियर फॉर योर सेल्फ. यू ओनली टोल्ड कि भाई मुझे अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना है, ये करना है, वो करना है. एंड यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, नॉट नथिंग. लाइक अब आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो चुकी है. जबकि आपके, मैंने मैंने एक चीज हमेशा हाईलाइट की थी कि यहाँ पे लोग एक दूसरे के ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ेंगे. एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग विद गौतम. कि उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी. उनकी अच्छाई अब दिखती नहीं है जबकि ज्यादातर उनकी नेगेटिविटी ही ज्यादा दिखती है, विच इज नॉट हिम. सो दैट्स ऑलवेज लाइक आई फील बैड फॉर हिम. बट आई विश उसने मेरी बात पहले मान ली होती तो शायद आज नहीं होता. और शायद उसको पता भी नहीं कि अंदर क्या बाहर क्या चल रहा है. एंड उस वो कहते हैं ना नाइव, वो पहले से बहुत भोला है और गधा भी. बट बट ठीक है, ही इज वेरी नाइस गाय. आई थिंक ही विल रियलाइज, जल्दी ही वो रियलाइज कर लेगा. और नहीं रियलाइज करेगा तो मेरा क्या जा रहा है, मैं तो ना वापस मिलने वाली उन लोगों से. ओके मानी, मैं लास्ट क्वेश्चन टू यू इज जब आप घर से निकल रही थी तो एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट फाइट हो गया आप आपके और सौंदर्य के बीच में. विद नाउ एज अ व्यूअर आई एम सीइंग इट गॉट इनटू एन अगली स्पेस जो हमको टीवी पे दिखाई दिया. व्हाट डिड यू थिंक, व्हाट वेंट रॉन्ग? मे बी आपका शायद कुछ मंशा नहीं था झगड़ा करने का या उन्हें क्रिटिसाइज करने का,
व्हाट डिड यू थिंक एक्चुअली वेंट रॉन्ग, या फिर आपने कुछ बोला और लोगों ने कुछ और समझ लिया? इफ यू वांट टू क्लैरिफाई ऑन दिस थिंग। इट्स नॉट क्लैरिफाई क्लैरिफाई, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मैंने हमेशा बोला है कि जब गॉसिप वाला टास्क आया था, मैं एक हफ्ते, जब दूसरे हफ्ते में काफी शांत हो गई थी, दिख नहीं रही थी, मेरा काम यही था, जब मुझे लोग हटा देते तो मैं ऑब्जर्व करती थी, एंड दैट इज लाइक आई कांट डू एनीथिंग विद इट, माय ऑब्जर्वेशन स्किल इज वेरी स्ट्रांग, टच वुड। सो वो चीज मैंने, गॉसिप गॉसिप मतलब होता है कि आपने जो देखा है, आपने जो सुना है, वही आप जाके बोलोगे। तो मैंने वही अंदर जाके सच बोला, मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया। वही चीज अर्चना ने भी बोली, मैंने सिर्फ ऑनेस्टी से स्टार्ट से उस स्टोरी को एंड दिया कि वही चीज हो रही थी। और वो सच जब सबके सामने आया तो कहते हैं ना, सच कड़वा होता है, तो सच कड़वा लगा उनके लिए, क्योंकि शी नोज दैट दैट मान्या ने उनकी रियलिटी दुनिया के सामने लाके रखी है। और मैं ऐसी बंदी हूं कि मैं डिप्लोमेटिक हो ही नहीं सकती, मैं स्ट्रेट ऑन द फेस होती हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट रहती हूँ। भले मेरा ओपिनियन, मैंने वही बोला कि मेरा ओपिनियन बहुत सिलेक्टिव जगहों पे रहा है, लेकिन मेरा ओपिनियन बहुत स्ट्रांग रहा है, बिकॉज दैट्स हाउ हु आई एम। आई थिंक मुझे उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मैं दोबारा बोल पाऊं, या मेरी एक्चुअली दुनिया को दिखा पाऊं कि मान्या है क्या, रादर देन जो उनको लगा है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि वहां पे कुछ गलत ऐसा हुआ है। बट when I said that there was one, I think झगड़े में तो कुछ भी हो जाता है, बट मुझे पता है कि मैंने किसी को कैरेक्टर असैसिनेट नहीं किया था, देयर वाज असैसिनेट वर्ड। मैंने किसी के कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क नहीं किया था। इवन इन द गॉसिप आई सेड कि बीइंग अ गर्ल, मुझे किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाना, और वो मुझे करना ही नहीं है। और कुछ वर्ड्स जब मुझे बोला गया था कि मान्या बहुत नैरो माइंडेड है, नहीं, मान्या बहुत समझदार थी, इसलिए कुछ ऐसे गलत अपशब्द थे जिसको मैंने खुद रिप्लेस करके हग और इन सब चीजों से डाला था। मेरे बाहर आने के बाद खुद ही गौतम ने ये बोला था कि मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे करे वैसे करे, तो वो वर्ड्स उन्होंने खुद यूज कर दिए थे, जबकि मुझे नहीं यूज करना था। मैंने बहुत रिस्पेक्टिंग वर्ड वहां पे यूज किया था, सो दैट मेरे मुंह से किसी लड़की का कैरेक्टर ना गलत हो, बिकॉज उसके पेरेंट्स भी देखते हैं, मेरे पेरेंट्स भी देखते हैं। मैं आई कम फ्रॉम यूपी, सो इफ आई से एनीथिंग बैड टू एनी गर्ल, वो पूरी लाइफ मेरे कैरेक्टर पे एक टैग रहा है कि मान्या ने एक औरत को नीचा दिखाया था। नहीं, मान्या ने सच बोला था। देयर वॉज अ वर्ड दैट स्लीपिंग, तो आई डिडंट इवन से अ वर्ड आफ्टर स्लीपिंग। मेरे दिमाग स्लीपिंग एवरी डे, बिकॉज वो हमेशा बीमारी का बहाना करती थी और फिर बोलती थी कि मैं तो पूरे दिन काम कर रही हूँ, मैं बीमार हूँ, फिर भी मैं काम कर रही हूँ। बट आपको किसी ने बोला नहीं था ना। मैं जब भी जाती थी किचन में, वो बार बार मुझे करने ही नहीं देती थी। सो शी हैज बीन ऑलवेज डोमिनेटिंग, तो वो स्लीपिंग बोल के मैं वहां से निकल, मुझे बोलना ही नहीं आती। राइट। बट दैट केम आउट दैट आई एम गिविंग अनदर स्टेटमेंट विच वाज रॉन्ग। बट ठीक है, लोगों ने देखा, सुना, जो दूसरे लोगों ने बनाया, दैट्स ऑलवेज अप टू देम। आई एम टेलिंग यू दैट इट विल नेवर इफेक्ट मी, इट विल नेवर इफेक्ट माय फ्यूचर, बिकॉज वो ये सारी चीजें कभी आपके फ्यूचर पे इफेक्ट होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज यू नो दैट if you are working hard, destiny will come to destiny will come in your favor. राइट, राइट। ओके मान्या, सो जाते जाते इस हम हमसे ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त घर में दो लोग बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। एक है शिव और एक है प्रियंका। अम, दो अगर इंडिविजुअली बात करें, तो प्रियंका और शिव दोनों की गेम आपको कैसी लगती है? बिकॉज आप घर में भी रह के आई हैं, आप बाहर भी अब हैं, तो इंडिविजुअली आपको दोनों की गेम कैसी लगती है? क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, अगर कुछ बता पाए तो। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की ही गेम काफी स्ट्रांग है, वो इंडिविजुअली काफी अलग तरीके से खेल रहे हैं, दोनों की गेम काफी अलग है। सो वो समय ही बताएगा कि कौन किससे बढ़िया है। मे बी कोई डार्क हॉर्स होगा जो इन हम्म। दोनों से आगे निकल जाए, नो, नेवर नो, राइट? जी। जी, कौन लगता है तो आपको? लेट्स टेक इट इन, डार्क हॉर्स हो सकता है, मे बी अ रैंडम। कोई भी हो सकता है यार, कोई भी हो सकता है। इवन जो वाइल्ड कार्ड है वो भी डार्क हॉर्स हो सकता है। इवन जो घर में कोई ऐसा जो ज्यादा ना बकवास करता हो लेकिन मुद्दों पे बात करता है, वो भी डार्क हॉर्स। तो दुनिया को जो दिखता है ना, आई थिंक राइट। शायद वो चीज रियलिटी ना हो। वो मे बी वाइल्ड कार्ड में जो है वो ट्रॉफी लेके जाए। एनीथिंग कैन राइट, हैपन एनी टाइम। right, right. Okay. So Manya, first of all, thank you so much for this wonderful interview, and we do hope कि आपको बहुत ज्यादा success मिले, peace मिले life में. Anything you want to say to your fans?
nahi, nothing else. I just want to say thank you so much for all the love and support, and I'll always say that focus on your life. आई थिंक बहुत कम सेलिब्रिटीज ऐसे होंगे जो बोलेंगे, बट आई ऑलवेज से दैट अगर आप अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे तो मेरी जैसे 1,000 लड़कियों को आप आगे पकड़ के ऊपर ला सकते हो. एंड डोंट गिव योर एंटायर 12 का 12 घंटा on social media. Come out of that zone. There is a huge life which is waiting for you. So work on yourself because your family is waiting for you. Your future is waiting. So give me 10 to 20 minutes of your day and then rest. Focus on yourself. Right, right. On this note, thank you so much, Mania, and all the best. Thank you. Thanks. Thanks. फॉर ऑल द लव. ग्लिट्स विजन पे आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप हैं इसलिए मैं हूँ. थैंक यू सो मच.